So, shall we start, sir? Milind sir? और 5 मिनट वेट कर लेते, बच्चे शायद से ज्वाइन हो रहे हैं। Okay, sir. Yes, madam, we can start now. Almost Okay. Okay, sir. Swagatam, Abhinandanam, Abhivadanam. Good afternoon and very warm welcome to all of you present here. On the behalf of Sage Institute of Management Studies, I, Professor Aarti Sharma, welcome you all on the Sage talk of placement opportunities through apprenticeship. जैसा कि हमारी परंपरा है, हम अपने दिन की शुरुआत माँ सरस्वती की आराधना से करते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत भी हम माँ सरस्वती की आराधना से करते हैं। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता
पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। हे माँ, हमें ज्ञान के प्रकाश की तरफ ले चलिए, तमसो मा ज्योतिर्गमया. So, my dear students, let's officially start the program with the Sage Group introductory video. Wow, what a beautiful video. Now, dear students and participants, happy to share कि आज का ये जो प्रोग्राम है हमारा सेज टॉक, ये हम युवा शक्ति फाउंडेशन के तत्वाधान में कर रहे हैं. आइए जानते हैं युवा शक्ति फाउंडेशन के बारे में. युवा शक्ति फाउंडेशन established in 2007 and from last one decade is engaged in the sector of education, human resource development, skill development and training activities to inculcate various skills in unemployable youth in order to make them fit for employment. Yuva Shakti Foundation is also associated with All India Council of Technical Education AICTE under National Employment Enhancement Mission NEEM as NEEM facilitator to enhance the employability through on-the-job training. Yuva Shakti Foundation is also appointed by National Skill Development Council NSDC and
Directorate General of Training DGT under Ministry of Skill Development and Entrepreneurship to act as a third party aggregator TPA under National Apprenticeship Promotion Scheme, and Yuva Shakti Foundation is also working on industry integrated programs, collaborated programs between industries and universities like us as a earn and learn module. Yuva Shakti Foundation headquartered at Pune and having its presence across 18 states in India, associated with 600 plus industrial training partners in various sectors. Currently, more than 25,000 candidates, those are having educational qualification, minimum 5th to postgraduate level of all streams, are taking on the job training in various industries across India to enhance their entire employability skills in various industrial sectors. Now, I would like to request Dr. Sarvesh sir to welcome our guest, Mr. Satish Pawar sir, Director Training, Yuva Shakti Foundation. Thank you, Aarti ma'am. I hope I'm audible. Yes, sir, you are. It gives me immense pleasure to introduce all of you about this personality. Allow me to read his profile to you. Thank you, sir. First of all, Mr. Satish Pawar is the Director Training, Yuva Shakti Foundation. Satish sir holds a bachelor's degree in civil engineering from College of Engineering, COEP, Pune, and is an MTech in construction management. He is currently pursuing his PhD in skill development. He is also working as the director of Polytechnic Institute. He has also worked as the director of Polytechnic Institute. Since the last decade, he is working in the field of distance education, industry integrated programs, collaborative programs between industries and universities on earn and learn model. Satish sir is continuously into conducting awareness webinars and workshops on apprenticeship programs for management, polytechnic, degree students of various institutes across India. I would like Satish sir to please come on the mic and address the audience. On to you, sir. Thank you, sir. Thank you very much. Yeah, Milind, please allow me to share my PPT. Yeah, thank you very much. Is it visible, Milind? Visual, sir. Yes, sir. Thank you very much, Sage Group of Institute, Professor Aarti Sharma Madam, Dr. Sarvesh sir, and my dear students. मैं आशा करता हूँ कि considering this COVID pandemic scenario, you are all safe and healthy at your place, और आपके घर में, आपके relatives में सब कुशल मंगल होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ. Today we'll discuss the placement opportunities or employment opportunities through apprenticeship program. हम शुरुआत में बेसिकली इंडिया में एम्प्लॉयमेंट की क्या सिनेरियो है फॉर ऑल टाइप ऑफ ग्रेजुएट, इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे. फिर अप्रेंटिसशिप का महत्व क्या है हर एक स्टूडेंट के लिए, इंक्लूडिंग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स, BBA students or traditional graduate like BA, BCom, BSc students. तो बेसिकली हर साल जो हमारे authorities है, say like AICT, UGC, they are conducting a survey through various bodies like say Aspiring Minds, Vibox वगैरह. अगर आप गूगल करते तो उसमें आपको इंडिया स्किल रिपोर्ट करके आप फाइंडिंग करते तो मिलेगा. As per the recent finding or as per the India Skill Report 2021, around 45% of graduate are found employable. मतलब क्या होता है, 50% से भी ज्यादा जो भी हमारे graduates है, including all graduates, don't worry that
कि मैनेजमेंट का कितना है, इंजीनियरिंग का कितना और बीबीए का कितना। ऑल टाइप ऑफ ग्रेजुएट्स आर नॉट सुटेबल फॉर प्लेसमेंट एज पर इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशन। रीजन क्या है हम आगे जानेंगे। अगर हम पैटर्न देखते हैं for last few years, 2015 to 2021, about the employability skills or the placement percentage. So right from 2015 में जो 37% था, तो उसमें बीच में कहीं तो उसमें बढ़ोतरी हुई है। लेकिन हम पैंडेमिक पीरियड की बात करते हैं 2020 to 2021 का, only around 45% people in average are eligible for the placements. कौन से सेक्टर्स में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रही है? ऑल टुगेदर सभी सेक्टर्स में, अगर हम थोड़ा सा उसमें माइन्यूट एनालिसिस करते हैं या रिपोर्ट्स देखते हैं, तो 2020 और 2021 के लिए हम ज्यादा बात करेंगे, बिकॉज पैंडेमिक के बाद जो अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है, कुछ सेक्टर्स में थोड़ा सा स्लो हायरिंग है या ऑलमोस्ट जीरो हायरिंग है, जैसे ट्रैवल टूरिज्म या हॉस्पिटलिटी जैसे सेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत ही बैडली अफेक्ट हुआ है। ऑन द अदर साइड, लाइक हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक, ई गवर्नेंस सेक्टर्स में काफी उसमें अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है, कंसिडरिंग द मैनेजमेंट एंड अदर रिलेटेड स्ट्रीम्स। सो 2021 इज गुड फॉर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। उसमें हम राइट फॉर्म से इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर तो आजकल बहुत तेजी में। Then BPOs, KPOs, IT इंडस्ट्रीज, इंटरनेट बिजनेस, जो डिजिटल मीडिया का या डिजिटल इंडिया का लॉन्चिंग हुआ है, उस तरह से अकॉर्डिंगली वो सेक्टर की जो सर्विसेज है उसमें काफी अपॉर्चुनिटीज 2021 में या आने वाले समय में क्रिएट होने वाली। लास्ट 1 ईयर राइट फ्रॉम से 20 मार्च 2020 टू टिल डेट, अगर हम अगर ये करते हैं लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2 या फेज 1, फेज 2, जो भी कोविड का स्प्रेड रहा है, उसमें बैंकिंग, फाइनेंस, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, अगर हम ई लर्निंग या ऑनलाइन लर्निंग की या उसकी जो मार्केटिंग का पार्ट है उसकी बात करते हैं। आपकी जानकारी के लिए हम बात करेंगे कि पहले ऑनलाइन एजुकेशन इतना मतलब यूजीसी लेवल पे भी उसकी एफिलिएशंस नहीं थी, लेकिन अभी आने वाले कुछ समय में या अगर हम लास्ट के कुछ महीनों की बात करते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं और उसके अनुसार उनके जो भी मार्केटिंग स्ट्रीम में है या बैक एंड टीम है, उसमें काफी सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है। जैसे हम आईटी, इंटरनेट बिजनेस सर्विस की बात करते हैं। सो दिस इज फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। अभी देखिए, हु इज गेटिंग हायर्ड, ये भी एक थोड़ा सा एनालिसिस है। ये मुझे इसीलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट और importance of apprenticeship for any kind of fresher, graduate or diploma holder, that I want to highlight to you people. तो इसमें रिपोर्ट ऐसा करता है, तो इंडस्ट्री का जो पैटर्न है, the industry would like to hire the candidate those are having minimum 1 to 5 years of experience into related domain, and freshers are having only 16% of demand. इसके लिए मैं एक छोटा सा आपको स्टोरी बताना चाहता हूँ, या स्टोरी नहीं बताऊंगा मैं उसको, एक फैक्ट है जो डिस्कस किया गया है। एक टीपीओस का मीटिंग चल रहा था, या उसमें इंडस्ट्री के अलग अलग वर्टिकल्स के एचआर ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, प्रेसिडेंट्स भी इनवाइट किए गए थे, और द इंडस्ट्रीज वेयर वी कैन से इंडस्ट्री एकेडमी मेट, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पे सिलेबस, करिकुलम, द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, एक्सपेक्टेशन ऑफ एचआर पीपल फ्रॉम द स्टूडेंट, ये काफी सारी चीजें डिस्कस हुई है। तो एक टीपीओ ने पूछा कि जनरली हमारा एकेडमिक, और ये जो एग्जांपल है मैं ऑलमोस्ट सभी सेशंस में या सभी डिस्कशन में देता हूँ, तो इसीलिए कि ये इंडस्ट्री क्या चाहती है या क्या सोचती है, आपको समझना बहुत ही जरूरी है कंसिडरिंग द फ्रेशर ग्रेजुएट्स। तो एक टीपीओ ने पूछा, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर ने, कि इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को पूछा कि एवरी ईयर यू आर कंडक्टिंग अ कैंपस ड्राइव इन आवर इंस्टीट्यूट्स, आप जनवरी, फरवरी टू अप टू द एंड ऑफ एकेडमिक, जून में मोस्टली का ये होता है, एंड होता है, आप
कैंपस करते हो और उसमें ऑफर लेटर देते हो. सो यू आर आस्किंग स्टूडेंट्स टू ज्वाइन इन द मंथ ऑफ से जुलाई, अगस्त, सितंबर, लेकिन आप पोस्टपोन करते हो ज्वाइनिंग. ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी और व्हाट इज योर पॉलिसी इन दिस रिगार्ड? तो वहां पे बहुत ही एक सीनियर पर्सन था एचआर का, तो उसने जवाब दिया, दोस्तों ये अच्छी तरह से आप समझ लो क्या इंडस्ट्री सोचती है, और उसका रीजन भी मैं आपको ये एग्जांपल के बाद देता हूँ. तो उन्होंने बताया कि ये देखिए, आपको कहीं लॉन्ग टूर पे जाना है, से फॉर एग्जांपल इंदौर टू आपको आगरा या दिल्ली में जाना है या वृंदावन जाना है लेट्स से, और काफी डिस्टेंस है, और अपने पूरी फैमिली के साथ जा रहे हो, तैयारी की है, आपने कार हायर की है, सुबह आपका जाने का वक्त आता है, आपके घर के सामने कार खड़ी हो जाती है, और जो कार का ओनर आपको बताता है कि कार इज रेडी, ड्राइवर इज रेडी, लेकिन वो बोलता है जिस गाड़ी के साथ आप यात्रा करने वाले हो वो कार का जो ड्राइवर है उसने लास्ट वीक ही ड्राइविंग सीखी है और उसने कल ही आरटीओ का लाइसेंस उसको मिला है. तो एचआर ने ये सवाल पूछा सभी टीपीओस को दोस्तों कि क्या आप ऐसी गाड़ी के साथ ट्रैवल करोगे? द ड्राइवर इज फिजिकली फिट. ट्राई टू अंडरस्टैंड. Driver is physically fit. He got the license from RTO department. मतलब वो सक्षम है कार चलाने के लिए क्योंकि उसको यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिल चुका है. ही मतलब उसको सभी जो भी सवाल जवाब पूछने थे, जो भी उसको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, टेक्निकल डिटेल थी, वो सभी चीजों की जानकारी जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आरटीओ ने उन्होंने ले लिया और उसको लाइसेंस भी दे दिया. इस गाड़ी में आप ट्रैवलिंग करोगे क्या? दोस्तों ऑफ कोर्स इसका जवाब ना आएगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड. इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू अ वेरी ड्रास्टिक ट्रांसमिशन फेज. आपने BS4, 5, 6, 7 का चर्चा तो मीडिया में सुनी होगी, न्यूज़पेपर में सुनी होगी. आप बात करोगे कि दिस इज नॉट रिलेटेड टू मी because I am from management side, I am from BBA side, or I am from say a traditional graduate side. This is not related to me. This is related to the engineering people or engineering graduates. No, not at all. अगर हम पूरे लाइफ साइकिल की बात करते हैं या एम्प्लॉयमेंट साइकिल की बात करते हैं, एक भी सेक्टर थोड़ा सा हैम्पर होता है तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी होता है. जब कोविड का पीरियड चल रहा था, फर्स्ट लॉकडाउन, इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो एंड इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल सिनेरियो फॉर एवरीबॉडी, फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर द पीपल, फॉर द लेबर, फॉर द एम्प्लॉयज, एवरीबॉडी, एंड फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एज वेल. तब प्रेडिक्शन ऐसा चल रहा था दोस्तों कि इंडस्ट्री किस प्रकार से ग्रोथ करेगी, कैसा पैटर्न रहेगा, वेदर इट इज यू शेप. यू शेप मतलब सडन डाउन होगा इकोनॉमी, उसका थोड़ा सा फ्लैट चलेगा फिर अप जाएगी, या इट इज वी शेप, या इट इज डब्ल्यू शेप, और इट इज एल शेप. एल शेप में ड्रॉप हो गया और सीधी चलती है. तो ये सभी चीजों को हमें आने वाले समय में कंसिडरिंग अवर एम्प्लॉयमेंट, कंसिडरिंग अवर करियर, ध्यान में आपको रखना पड़ेगा. We have to face this situation. We have to do the analysis. We have to do the analysis of requirement of industries, expectation of industries. तो इस सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमें किस प्रकार से हमें नर्चर करना है अपार्ट फ्रॉम आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. देखिए, पेरेंट्स ने अपना काम किया है कि दे हैव पेड योर फीस, दे अलाउड यू टू एंटर इनटू गुड इंस्टीट्यूट लाइक सेज ग्रुप. फैकल्टी ने आपको पढ़ाया है, जो भी एकेडमिक्स करिकुलम में हो आपको दिया है, आप लोगों ने प्रयास किया हुआ क्लासेस अटेंड करने की. नाउ एवरीथिंग इज फिनिश. आपको खुद को प्रेजेंट करना है, आपको खुद को एक्सप्लोर करना है. आप जब एक्सप्लोर करते हैं तो इंडस्ट्री इज नॉट ओनली एक्सपेक्टिंग योर मार्क्स ऑन द पेपर, whether you are having first class, second class, or distinction, or more than that. Over and above your academic qualification, industries are expecting many other employability skills. What is skill?
अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं, दिस इज द इंडिविजुअल एबिलिटी टू कैरी आउट द टास्क वेल। अगर आपने मैनेजमेंट में से फॉर एग्जांपल एमबीए फाइनेंस किया है, एमबीए एचआर किया है, बट यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ मार्केट, नॉलेज ऑफ पेरोल, यू डोंट नो द नॉलेज, डोंट हैव द नॉलेज ऑफ एक्सेल, या आपके पास सैप का नॉलेज नहीं है और बाकी सारी चीजों का, तो आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और यू आर नॉट हैविंग द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल, फॉरगेट वेदर यू आर गुड इन इंग्लिश और गुड इन हिंदी, वो बात करना छोड़ दीजिए। वो छोड़ दीजिए लैंग्वेज की बात। मैं बोल रहा हूँ आपको बात करनी आती है क्या? मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट जब करता हूँ, तो दे डोंट नो द सिंपल फंक्शंस, दे आर अफरिंग फॉर द इंटरव्यूज। पूछता हूँ भाई व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, क्या रहा आपका एकेडमिक्स? सो राइट फ्रॉम से 10th स्टैंडर्ड टू ग्रेजुएट टू पोस्ट ग्रेजुएट, दे आर हैविंग वेरी कलरफुल मार्क ऑन द पेपर। मतलब उसके लिए कोई भी चैलेंज नहीं है, या दूसरा कोई हम ओपिनियन नहीं ले सकते। लेकिन व्हेन वी आर आस्किंग अबाउट द एबिलिटी, सी इफ यू आर अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यूज, आपका मॉक इंटरव्यू का राउंड वगैरह लिया रहेगा, या इस प्रकार की इंटरव्यूज की भी सेशंस आपके यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट की लिए होंगे, या गूगल करते हो तो यूट्यूब पे काफी सारी टेक्निक आई मीन अवेलेबल है। जब एचआर आपको सवाल पूछता है कि बहुत ही कॉमन सवाल होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये बहुत ही जनरल सवाल होता है, और हम बहुत ही कुछ हमारी फैमिलीज और खुद के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। देखिए दोस्तों, ये जब सवाल और इस प्रकार की चीजें जब पूछी जाती है ना, तब एचआर या जो भी इंटरव्यू देने वाला है बंदा, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी बहुत सारी चीजों का एनालिसिस करता है। तो उसमें वो प्रेडिक्ट करता है कि मतलब 10 और 15 मिनट के इंटरेक्शन में आपने 15 सालों में, 20 सालों में जितना भी कमाया है, जितना भी स्टडी किया है, वो आपको बहुत ही प्रिसाइज मैनर में प्रेजेंट करना पड़ता है, और उससे आपका लाइफ की जो भी करियर की विंडो है या डोर्स है खुलने वाले होते हैं। तो इन सब चीजों में इंडस्ट्रीज आर एक्सपेक्टिंग गुड कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, negotiation skill, जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो, इफ इट इज रिलेटेड टू योर प्रोफाइल, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। बहुत सारे बंदे होते हैं बहुत सोलो मोड में बहुत ही अच्छे काम करते हैं, बट व्हेन द क्वेश्चन इज कमिंग टू द टीम वर्क और टीम परफॉर्मेंस, वो किसी से मतलब जो इनिशिएटिव्स है टीम के साथ करने का उनका जो तरीका है, या उनके कम्युनिकेशन स्किल है, वो बहुत ही पुअर रहते हैं। ये देखिए, इसमें हमें आने वाले समय में अगर हम बात करते हैं पूरे भारतवर्ष की, दोस्तों ये सोच लो कि कंपटीशन बढ़ रही है, इकोनॉमी का सिनेरियो सब बदल रहा है। अपार्ट फ्रॉम योर डोमेन नॉलेज, यू मस्ट कैरी सर्टेन स्किल सेट, जिसमें आप दूसरों से कुछ ना कुछ खुद को अलग प्रेजेंट करने का कोशिश करोगे। और इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस काइंड ऑफ स्किल कैनॉट बी अचीव थ्रू लेक्चर्स, थ्रू द क्लासरूम सेशंस, और थ्रू द इंटरनेट और यूट्यूब वीडियोस। ये जो सभी स्किल सेट है वो प्रैक्टिस से ही होती है। अगर हम किसी के पेशेंस की बात करती है, किसी के निगोशिएशन स्किल की बात करते हैं, ये कोई आप टेक्निक सीख के नहीं कर सकते। ये जब आप प्रैक्टिस में लाओगे तब आपको पता चलेगा कि मेरा डेप्थ क्या है, किस डेप्थ तक मैं काम कर सकता हूँ। ये सभी चीजें प्रैक्टिस से आने वाली है, और प्रैक्टिस के लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, ऑन जॉब ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल। बिफोर गोइंग फॉर एक्चुअल जॉब, before going for actual career, whether you want to enter into core finance, whether you want to enter into banking, insurance, e-commerce, HR, or something HR strategy, और हम बात करते हैं मार्केटिंग की, वेदर इट इज डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे, अगर हम एमबीए की फील्ड्स की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड की बात करते हैं, या ट्रेडिशनल जो भी प्रोफाइल से उसकी बात करते हैं, तो अपार्ट फ्रॉम योर डोमेन नॉलेज, ये देखिए मैं बहुत सारे दोस्तों को सवाल पूछता हूँ इंटरव्यू में, सो व्हाट इज देयर एक्सपेक्टेशन? तो इसी एवरीबॉडी एक्सपेक्टिंग 5 डिजिट सैलरी, 5 डिजिट सैलरी इमीडिएट।
दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है, जब हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं ना, तब रिटर्न में हम क्या देने वाले हैं ना, ये भी सोच के रखो। नहीं तो आपका स्टे जो है ना, ज्यादा दिन का नहीं रहेगा। किसी भी इंडस्ट्री में आप जाओ, आपको लगता है कि मेरे तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन जब फ्रेशर आता है ना, उसके ऊपर 5-6 लोग ऑब्जर्वेशन करते रहते हैं, सीसीटीवी जैसे। व्हाट इज योर बॉडी लैंग्वेज, वेदर यू आर डूइंग द एक्टिविटी इन आई मीन इंडिपेंडेंटली और नॉट। आपका उसमें बहुत ही ऑनेस्टली के साथ आप आपका टास्क कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, या खाली 9:30 को आया या 6 को जा रहा है, खाली आपको जो भी टास्क इनिशिएट मतलब अलॉट किया गया है वो कर रहे हैं और जा रहे हैं। देखिए इंडस्ट्री ऐसे रोबोट्स को नहीं, आई मीन जो है मशीन्स को नहीं चाहती है। इंडस्ट्री चाहती हो कोई ना कोई बंदा हट के करे, अपार्ट फ्रॉम द असाइन टास्क। मतलब आपको कुछ टास्क दिया है कि भाई ये एक्टिविटी आपको दिन भर में पूरी करनी है, तो इसके अलावा वो टास्क अच्छा करने के लिए आप कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं, आप टीम मेंबर से बात करते हैं, सीनियर से 10 सवाल पूछते हैं, जो भी दिया गया है उसमें और कुछ बेटर चीजें लाने की कोशिश करते, सो आई एम व्हाटएवर। आपको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, यू आर वेरी गुड इन एकेडमिक्स। तो ये एक्चुअली एग्जीक्यूट करने की बात है, एग्जीक्यूट करने की बात है। ये कोई थियोरेटिकल व्हाट इज नेगोशिएशन, टेल मी द डेफिनेशन ऑफ नेगोशिएशन स्किल, आप लंबा चौड़ा है कैसे रखोगे, लेकिन आप प्रैक्टिस में नहीं कर रहे हो तो कोई उसका ये नहीं। और जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के कि मुझे केबिन ही चाहिए, उसमें एसी चाहिए, चेयर चाहिए, लेकिन मैं कुछ नहीं करूंगा, तो आपका जर्नी जो है बहुत ही शॉर्ट है, समझ लीजिए। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है या प्रैक्टिस का इम्पैक्ट क्या होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। समझो कोई वेल है और उसमें कुआं, और उसमें उसका जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो बहुत ही हार्ड स्टोन से किया गया है, लेट्स से बसाल्ट रॉक। और उसमें जब हम वहां से पुराने जमाने में होता है कुएं से पानी निकालते हैं, तो रोप से जो भी वो धागे से बना रहता है उससे खींचते हैं, वही रोप से। आप देखिए सालों के बाद वो जो स्टोन है, जो जहां से हम रोप से वो पानी निकाल रहे, जितना भी लीटर का रहेगा 500, वो स्टोन में भी एक ग्रू क्रिएट होती है, ग्रू, वी शेप, यू शेप, वॉट एवर इट इज। इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। कितना भी हार्ड रॉक क्यों ना हो, हम कितने भी रिजिड क्यों ना, फॉरगेट अबाउट योर मार्क्स, फॉरगेट अबाउट योर परफॉर्मेंस, फॉरगेट अबाउट हाउ मच गुड यू आर इन एकेडमिक्स, और आपने आपके टीचर से कितनी बार प्रशंसा सुनी हो या आपका अप्रेजल किया गया हो, फॉरगेट एवरीथिंग। now you want to enter into market, now you want to do something for your society, for your family, for you individual, और आपके खुद के कुछ ख्वाब है, कुछ ख्वाहिश है, और उसको अगर हमें पूरा करना है तो पहले आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और प्रैक्टिस कितनी, जब तक आपको कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है कि मैं मार्केट में जाके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ना कुछ अलग कर पाऊं। So, dosto, I'm talking about the on-job training. So, there are many on-job training scheme available in the market to do the practice of our education, of our knowledge. तो उसमें नीम स्कीम है, नेशनल एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट मिशन, एक श्रेय स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की, एक नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है नैट्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, और है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नैप्स की। मैं ज्यादा आज बात करने वाला हूँ अप्रेंटिसशिप स्कीम की, दैट इज ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप अंडर नैप्स, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। सो इफ वी कंपेयर education qualification or educational pass out from regular universities or college, जो valid कोई तो सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या कोई डिग्री लेके बाहर आते या पीजी प्रोग्राम लेके आते, वर्सेस अप्रेंटिसशिप, इसका अगर हम तुलना करते हैं या एक्सपेक्टेशन of industries or the target of Indian government, so roughly there are around 3-5 lakh engineers and 2.5 million university graduates or diploma holders annually contributing to our employment sector। और हम बात करेंगे तो सभी की
अगर हम तुलना करते तो सबको जॉब नहीं मिलने वाला। एक उसमें एक फाइंडिंग आई थी, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का इशू नहीं है, इशू है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। मतलब इंडस्ट्री चाहती है, मैं आगे जाके आपको एक स्लाइड में परसेंटेज दिखाने वाला हूँ कि इंडस्ट्री चाहती है बहुत सारे लोगों की, लेकिन हमारी अपेक्षा क्या रहती है, बहुत अलग अलग रहती है। मतलब हमें आता कुछ नहीं वैसे, मतलब मैं किसी पे ऊपर एलिगेशन नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आता कुछ नहीं इसमें, जो इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन है उस हिसाब से, लेकिन हम हमारा एक कुछ स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं बिना कुछ समझे जाने समझे, या कुछ एक लेवल डिफाइन कर लेते हैं, उसी लेवल से आगे चलते हैं। मैं आपको अगर कहने की कोशिश करूंगा कि ट्राई टू स्टार्ट योर करियर राइट फ्रॉम स्क्रैच, मतलब छोटे चीजों से कीजिए, और इसका आपको आगे वाली चीजों में, जब आप एक अच्छे मैनेजर बनोगे, अच्छे प्रेसिडेंट बनोगे, डायरेक्टर बनोगे, तो उसका आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर हम पैटर्न्स की बात करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में भी सुनने के लिए मिल रहा होगा, इंटर्नशिप हमें करना है या अप्रेंटिसशिप करना है। सो दोस्तों, इंटर्नशिप में और अप्रेंटिसशिप में बहुत ही एक लंबा चौड़ा जो है डिफरेंस है। इफ यू कंपेयर विथ रिस्पेक्ट टू स्टाइपेंड, लीगल फ्रेमवर्क, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, फॉर्मल असेसमेंट, रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन एंड ड्यूरेशन, तो अप्रेंटिसशिप जो है वो बहुत ही वैलिड और गुड मीडिया टू डू द ऑन जॉब ट्रेनिंग। एक बहुत ही अच्छा, अगर हम बोल सकते हैं, माध्यम है कंपेयर टू इंटर्नशिप, ट्रेनीशिप और इनफॉर्मल अप्रेंटिसशिप। बहुत सारे बच्चों को जब यूनिवर्सिटी कहती है कि आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट लेके आओ, वो कोई तो अपने पिताजी के रिलेटिव्स को कोई ना कोई पहचान वाला निकालते हैं और 6 महीने का 7 महीने का सर्टिफिकेट निकालते हैं। भाई मैं बोलता हूँ, आप चीटिंग किसको, फंसा किसको रहे, अपने खुद को, पेरेंट्स को, टीचर को, या किसको? ये जरा आप एनालिसिस कर लो। जब आप अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हो या इस प्रकार की इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए जाते हो, तो आप खुद को प्रेजेंट करने के लिए जाते हो, सीखने के लिए जाते हो। अप्रेंटिसशिप के बारे में भी मैं एक चीज बताता हूँ, जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो बहुत ही उटपटांग सवाल करते हैं, सर मुझे कितनी सैलरी मिलेगी? ओके सर, मुझे क्या क्या सीखने को मिलेगा? ठीक है। तीसरा, सर उसमें कैंटीन ट्रांसपोर्ट है क्या? ओके। सर कितनी लंबी है इंडस्ट्री? ओके। सर मेरे को क्या अपॉर्चुनिटी उसके बाद में? ठीक है। मैं क्या देने वाला हूं, मुझे क्या नहीं आता है, वहां पे मुझे क्या सीखने के लिए मिलने वाला है, क्या मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट में सीखने को मिलेगा, जो भी मैंने 4 साल में 5 साल में मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कंसेप्ट सीखे हैं, क्या मुझे वो एक्सप्लोर करने का, लर्न करने का, या कैन आई गेट चांस टू कोरिलेट माय एजुकेशन नॉलेज वर्सेस इंडस्ट्रियल पॉलिसीज वर्सेस इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशन और इम्प्लीमेंटेशन, या वहां पे क्या एग्जैक्टली इस्तेमाल होता है पॉलिसी तौर पे, क्या मुझे वो सीखने को मिलेगा? ये नहीं चर्चा करते हैं हम इमीडिएट एक्सपेक्टेशन मोड में आते हैं। दोस्तों, जितना छोटा इंडस्ट्री आपको रहेगा ना, उतना आपको अच्छा सीखने को मिलेगा, क्योंकि आपको अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, अकाउंट हो, फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो, क्वालिटी हो, या और भी कई सारे डिपार्टमेंट, वो सभी डिपार्टमेंट में आपको कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने का, कुछ ना कुछ सीखने का आपको मौका मिलेगा। जितनी बड़ी इंडस्ट्री होती है उतना लिमिटेड डिपार्टमेंट में आपको काम किया, क्योंकि बाहर तो एक्सप्लोज मतलब जाने का चांस बहुत कम मिलता है। डोंट लुक एट द अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड व्हाइल चूजिंग फॉर अप्रेंटिसशिप प्रैक्टिस। मैं आगे के मोड में जाता हूँ कि मुझे क्या स्टाइपेंड मिलेगा, क्या वगैरह। आप पहले ये सोचो कि मुझे क्या सीखने को मिलेगा। जब तक आप अपने हाथ जो है ब्लैक नहीं करते, काले नहीं करते हैं, जिसमें आप खुद को पेन नहीं करते ना, एक एक कहावत है बच्चों की, जब तक आपको खुद को कुछ पेन नहीं होती ना, तब आपको कुछ नहीं मिलेगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बहुत ही सीधी सरलता से और शॉर्टकट से मिलती है। जितने शॉर्टकट से जाओगे उतने शॉर्टकट से नीचे आओगे।
आगे जाने वाले समय में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ कंपटीशन करनी है। तो जब आप अप्रेंटिसशिप मोड के लिए जाओगे तो ट्राई टू लर्न फ्रॉम स्क्रैच, क्या क्या एप्लीकेशन है उस प्रकार से, और फिर आप उस प्रकार से आपको भाई ये ऐसा कर सकते हैं क्या, ये अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है क्या, तो आपको अलग अलग आइडिया उस माध्यम से आ सकती है अगर आप अप्रेंटिसशिप को इस नजरिए से देखते हो। इंडस्ट्री कितना बड़ा है, और बाहर दोस्तों को बताने के लिए मैंने महिंद्रा में अप्रेंटिसशिप किया, मैंने आयशर में अप्रेंटिसशिप किया, मैंने और इंडस्ट्री कोई होगी टाटा में अप्रेंटिसशिप किया, इसके अलावा जो भी इंडस्ट्री हो उसमें करो और क्या सीखने को मिलता है इसकी चर्चा ज्यादा करो, rather than the name or brand of industry or amount of stipend. That would be more better for your future. Yes. अगर हम बात करते हैं एज पर रिसेंट सर्वे मैंने बताया कि 54% ऑफ एम्प्लॉयर हैविंग ट्रबल ऑफ गेटिंग स्किल्ड पीपल व्हाइल हायरिंग। मतलब इंडस्ट्री चाहती है, रिक्वायरमेंट्स बहुत होती है, लेकिन बच्चों का जितना अवेलेबिलिटी है या जो बच्चे चूजी हो गए हैं, मतलब अननेसेसरीली खुद को प्रेजेंट करने के बजाय, तो इंडस्ट्री का आज भी जो है बहुत ही शॉर्टेज है स्किल वर्कफोर्स का और स्किल पीपल का। अगर हम बात करते हैं रिनाउंड अप्रेंटिसशिप की, ये देखिए ये 4-5 चेहरे आपके सामने और भी मिलेंगे। एक तो बहुत ही बड़े ऑनरेबल और बहुत ही इन ऑल जनरेशन इज वेरी फेमस पर्सनालिटी सर रतन टाटा जी। तो अगर हम बात करते हैं उनकी, तो हेनरी फोर्ड की, एंडी फार्मर की, लॉर्ड बैमफोर्ड सर की, तो इन सभी लोगों ने, इनका मैं परिचय देने की मुझे नहीं लगता कि देने की जरूरत है। इन सभी लोगों ने अपना जो करियर है ना वो एज अप्रेंटिस स्टार्ट किया है दोस्त। रतन टाटा सर ने जो उनकी जमशेदपुर की इंडस्ट्री या नाल्को जो ब्रांड है उनका ही ग्रुप का, या शॉप फ्लोर जो प्रैक्टिस है टाटा स्टील की, वहां से उन्होंने जमशेदपुर से, या मुझे एग्जैक्टली प्लेस पता नहीं, तो उन्होंने वहां से एज अप्रेंटिसशिप में अप्रेंटाइज करके ज्वाइन किया और वहां से उन्होंने अपना करियर शुरू किया। सेम विथ अदर पीपल एज वेल। तो मतलब आप समझ लीजिए कि ये कितना अच्छा एक माध्यम है, मीडिया है अपने खुद के करियर को सजाने का। कैसे कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप? There are two types of trades are available for MBA holders and BBA holder as far as apprenticeship is concerned. Trade apprenticeship में आपको designated as well as optional trade apprenticeship available है, और इस को करने के लिए अगर हम बात करते हैं कि क्यों करना चाहिए अप्रेंटिसशिप, मैंने ख्याल से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अलग अलग तरीके से देने की कोशिश की है। बेसिकली इट इज अ वेरी गुड transition from your world of education, world of your learning to work as far as actual industries work environment is concerned. बहुत सारे बच्चे 8 घंटे नहीं खड़े हो पाते, या 8 घंटे बहुत ही मतलब वो हाइपर एक्टिव होते हैं, 8 घंटे खुद को बेयर नहीं कर पाते। पीपल आर वेरी मच एडिक्टिव नाउअडेज इन मोबाइल, दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट इवन इन द वर्क। तो आपको ये सभी चीजों की एक टेस्टिंग मिल जाएगी अप्रेंटिसशिप के माध्यम से। Let me tell you one very important point. Apprenticeship in India is considered as a valid work experience. आपके पास जो भी डिग्री है मैनेजमेंट की या एडमिनिस्ट्रेशन की या ग्रेजुएशन की, उसमें आपको एक इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिलेगा, जो आपके आप कितने भी एज के हो, 40 हो, 50 हो, 60 एज के हो, आप जब भी कई नई अपॉर्चुनिटीज के लिए जाएंगे अलॉन्ग विथ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और बाद में आप जितना भी खुद को एनहांस करोगे, द अप्रेंटिसशिप विल बी अ गुड टूल टू राइट इन योर सीवी। मतलब एक अच्छा जरिया, क्योंकि आपके पास सर्टिफिकेट होगा, उसका एक्सपीरियंस रहेगा, और एक खुद को एक अलग सा एक अनुभव रहता है अप्रेंटिसशिप का। और जहां तक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से, जैसे बेल है, गेल है, या बहुत सारी बैंकिंग सेक्टर है, वहां पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे बार उसमें
MBA in so and so, BBA in so and so, engineering so and so, प्लस 1 year apprenticeship और apprenticeship, इस प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन के लिए। तो let me tell you that apprenticeship is considered as a valid work experience। तो बाकी जगह पे हम कोई अलग फॉर्मेट से लेते हैं तो उसका शायद से इतना वैल्यूएशन नहीं रहेगा, इंटर्नशिप का भी नहीं रहेगा, क्योंकि इंटर्नशिप कैसे ली जाती है ये सबको पता है कि बच्चे इंटर्नशिप में क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो आप समझ लीजिए, बाकी सारे मेरे ख्याल से जो बेनिफिट्स है स्टूडेंट को आप गूगल करके समझ सकते हैं। So apprenticeship has basically two components: on-job training and basic training. Why apprenticeship is important again in industry perspective, और आप कैसे देख सकते हैं? तो दोस्तों, as per Apprenticeship Act 1961 and recent amendment in 2019, the apprenticeship is important for HR perspective, आपको सीखने को मिलेगा, is important for all the industries those are having more than 30 employees। तो उसके लिए मैंडेटरी है to hire the apprentice in a band of 2.5% of their manpower count। तो अगर हम एमपी की बात करते हैं, पीतमपुर की बात करते हैं, भोपाल की इंडस्ट्री की बात करते हैं, या ग्वालियर की इंडस्ट्री की बात करते हैं, या बाहर आउटसाइड महाराष्ट्र, बेंगलोर और यूपी नोएडा की बेल्ट की बात करते हैं, तो सभी जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे अप्रेंटिस लेना बाय एक्ट मैंडेटरी है। और आप उसको देख सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज गूगल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। वो कैसे देख सकते हैं तो मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताता हूँ। So I was talking about the optional trade apprentice. What is the optional trade? Basically, it is any course in engineering, non-engineering, management, pharmacy, anything, or it may be created by the employer as per their requirements. So basically, optional trade apprenticeship offer more flexibility to engage the candidate in all department। पहले apprenticeship के बारे में एक प्रकार का बहुत ही मिसअंडरस्टैंडिंग था। अप्रेंटिसशिप मतलब ये खाली आईटीआई के लोगों के लिए ही है। अप्रेंटिसशिप मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में ही होती है। इस प्रकार का एक मिसअंडरस्टैंडिंग मार्केट में था। दोस्तों, as per amendment in 2014 in Apprenticeship Act 1961, apart from shop floor practices, apprenticeship being open for all sector, for all service industries or non-manufacturing industries। उसमें सभी प्रकार के सेक्टर, ट्रैवल, टूरिज्म, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सभी प्रकार के सब सेक्टर, लॉजिस्टिक, बैंक्स में भी आजकल अप्रेंटिसशिप जाते हैं, लॉजिस्टिक में जाते हैं, ट्रैवल टूरिज्म में जाते हैं, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जाते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं। काफी सारी जो इंडस्ट्रीज है उनको अगर किसी बंदे को या फ्रेशर को डायरेक्टली ऑन रोल नहीं लेना है, if they want to test the capacity of candidate or ability of candidate, attitude, approach of candidate, they are all hiring the fresher to apprenticeship mode only। Try to understand। और आपके दिमाग में अगर ऐसा है कि खाली इंजीनियरिंग लोगों के लिए और आईटीआई के लोगों के लिए ही अप्रेंटिसशिप, तो ऐसा नहीं है। सभी प्रकार के ग्रेजुएट्स को अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटी है, आइदर अंडर ऑप्शनल ट्रेड अप्रेंटिसशिप या ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में, जो नॉन इंजीनियरिंग सेगमेंट के लिए अवेलेबल है। कैसे कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप? बेसिकली आप जो वेबसाइट है apprenticeship India org चाहिए, इसमें बहुत ही अपडेटेड वेबसाइट है। Why it is updated? Because all the transaction, all the administration of apprenticeship, right from sourcing of candidate, their registration, signing of contract, their payroll, their assessment and certification, handle through portal only, apprenticeshipindia.org। तो इस पोर्टल के माध्यम से आपको खुद को रजिस्टर करना है। Any candidate who has completed 14 years of his age, physically fit and having valid आधार कार्ड, लिंक बैंक अकाउंट और आधार कार्ड और अपने एजुकेशनल सर्टिफिकेट के साथ वो पोर्टल के ऊपर रजिस्टर कर सकता है। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों ने रजिस्टर कर देना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, खाली 10 मिनट की, और आप उस पोर्टल को गूगल कर सकते हैं। वहां पे अपॉर्चुनिटीज करके एक सेगमेंट में आपका एजुकेशन के साथ, आपके लोकेशंस के साथ,
आपके जॉब प्रोफाइल की चॉइस के साथ आपको फिनेंस में जाना है, गवर्नेंस में जाना है, मार्केटिंग में जाना है और बहुत सारे प्रोफाइल है, उसके साथ आप अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हो, उस इंडस्ट्री को आप अप्लाई कर सकते हो, उस इंडस्ट्री के कॉन्टैक्ट डिटेल से if required you can approach them either through लैंडलाइन, मोबाइल और ईमेल, और बहुत सारी इंडस्ट्री को आप उस प्रकार से दे सकते हैं और आपको कॉल बैक भी आएगा या आपके पोर्टल के ऊपर रिक्वेस्ट भी आएगा, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आएगा। मैं बोलता हूं कि जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि सब चीजें उनको घर के पास में चाहिए रहती है कि कितना नजदीक में है, और सभी को अपने फेवरेट कंडीशन में सब कुछ करना होता है। देखिए, आज तक हमने जितना किया हमारे मन जैसे किया, और पेरेंट्स ने भी हमें दिया। एक्सक्यूज मी, अभी मौका है, कल जाके हम एक वी आर बिकम द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया, और हमारे ऊपर हमारे परिवार की, फैमिली की, खुद की जिम्मेदारी आने वाली है। तो अभी समय है बहुत सारी चीजें सोच समय के, मोबाइल पे ऊपर जितना टाइम हम वेस्ट करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट try to spend your time on all this kind of learning and searching the better opportunities for apprenticeship and आपका जो भी फेवरेट जॉब प्रोफाइल होगा उसका आप सर्च कर सकते हैं। This kind of certificate you will get after completion of training period. This carries the equal weightage, और मैंने उसके बारे में बताया क्या, apprenticeship is considered as a valid training experience. बच्चों का सवाल रहता है कि ये मतलब नहीं होने चाहिए एक्चुअली कि कैन आई लिव और फिनिश द अप्रेंटिसशिप अर्ली, बीच में छोड़ सकता हूँ क्या? मेरा तो क्लियर कट आपको जवाब वैसा है, डोंट लिव द अप्रेंटिसशिप इन बिटवीन। क्यों? इसका मैं आपको रीजन बताता हूँ कि अप्रेंटिसशिप एक लर्निंग प्रोग्राम है, ये कोई आपका जॉब वाला प्रोग्राम नहीं। आपको एक जैसा आपने 10 किया, 12 किया, ग्रेजुएशन किया और पीजी किया फॉर एग्जांपल, या ग्रेजुएशन तक आप हो, और उसके बाद में आप करियर करना चाहते हो आपके जो भी फेवरेट फील्ड है उसमें, तो आपने पूरा पार्ट कंप्लीट किया और फिर आगे जाने की कोशिश करने वाले हो। तो आगे जब जाओगे तब अप्रेंटिसशिप एक ऐसा एक बीच वाला रास्ता है जहाँ पे और इंडस्ट्री की आप टेस्टिंग कर सकते हो कि कौन सा अच्छा है और क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो ये एक लर्निंग प्रोग्राम है, जैसे हम ग्रेजुएट बीच में नहीं छोड़ सकते, कोई फायदा नहीं है, वैसे अप्रेंटिसशिप बीच में मत छोड़िए। अगर आपको कई अच्छी अपॉर्चुनिटीज इन बिटवीन मिलती है, या इंडस्ट्री आपको वही इंडस्ट्री खुद को आप हायर कर लेती है, या आपको कोई वर्स्ट रीजन है फैमिली और समथिंग मेडिकल का, तभी बीच में अप्रेंटिसशिप छोड़िए। irrespective of amount of stipend, nature of industry and anything, please complete your apprenticeship and consider it as a learning program. फाइनल ईयर के बच्चों को मैंने बताया कि डोंट वेट फॉर योर सर्टिफिकेशन, मतलब अगर आपका पूरा एकेडमिक्स के एक्टिविटी जो है, चाहे वो सेमिनार हो, चाहे आपका प्रोजेक्ट सबमिशन हो, थीसिस हो, अगर सब कुछ कंप्लीट है एंड यू आर जस्ट वेटिंग फॉर योर फाइनल ईयर रिजल्ट, तो रिजल्ट आते समय डोंट वेस्ट टाइम बाय डूइंग सम काइंड ऑफ irrelevant activities. Register yourself on apprenticeship portal, और जो भी अच्छे अपॉर्चुनिटीज है आपको, बिकॉज इट डजंट रिक्वायर राइट फ्रॉम 5th पास टू पोस्ट ग्रेजुएट एनी, मतलब 5th 6th 7th 10th 11th ITI सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज है। तो आपने ग्रेजुएशन मतलब इफ यू आर इन द फर्स्ट सेकंड ईयर ऑफ योर दिस थिंग जूनियर कॉलेज और योर हायर एजुकेशन, तो आपको अप्रेंटिसशिप की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, यू आर एलिजिबल टू डू द अप्रेंटिसशिप। What can you do after that apprenticeship? ये सवाल पूछना चाहिए, ऐसा नहीं कि सवाल पूछना नहीं चाहिए कि क्या मिलेगा मुझे अप्रेंटिसशिप में। देखिए, अगर आप अच्छा इंप्रेशन जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं उसमें आपके सभी सीनियर्स के पास, ये देखिए एक चीज आप थोड़ा सा रूल समझ लेना पड़ेगा, सबको अच्छा चाहिए रहता है, एवरीबॉडी वांट्स गुड एनवायरनमेंट, एवरीथिंग गुड, नाइस फूड, नाइस ड्रेस, नाइस परफ्यूम, एवरीथिंग। तो इंडस्ट्री को भी अच्छे एम्प्लॉयज की जरूरत होती है, गुड, दे वांट गुड
एटीट्यूड अप्रोच के एम्प्लॉयर्स की या मैन पावर की जरूरत होती है। तो इस प्रकार का एटमॉस्फेयर, उस प्रकार का इंप्रेशन अगर आप क्रिएट करने में सक्सेसफुल होते हैं तो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री में ऑफर यू द बेटर अपॉर्चुनिटीज wherein you are doing the apprenticeship। या नहीं मिलती है तो अच्छा सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा और सर्टिफिकेशन के बाद आप नए जॉब रोल्स के लिए या कई अच्छी इंडस्ट्री के लिए उस एक्सपीरियंस के साथ जा सकते हैं। या इफ यू वांट टू फर्दर वांट टू कंटिन्यू द एजुकेशन, आप एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकते हैं। So I mean there are many agencies like us, like Yuva Shakti Foundation. Those are assisting the youths from all the stream, right from 5th pass to postgraduate across India to do the apprenticeship। और apprenticeship के साथ साथ जो employability skills training है उसका भी practice हम या उसका भी learning हम बच्चों को shop floor जो भी training है उसके बाद provide करते हैं। और आप वेबसाइट के माध्यम से भी इस प्रकार की जो अपॉर्चुनिटीज है वो आप अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हैं। सबको हमारी तरफ से शुभकामना। आपका जो भी करियर का सर्च है वो अच्छा हो और सबको अच्छी जॉब मार्केट में मिले। आपके सबके सच्चे जो भी सपने हैं अपने खुद के, अपने माता पिता की पूरे हो, ऐसे मैं आपको शुभकामना देता हूँ। और पुनः एक बार again, I would like to thank you, the SAGE Group of Institute, Arti Madam, Dr. Sarvesh Sir, Principal Sir, all the faculties, TPO, and all my dear students. Thank you very much. Thanks for your patience. आपने बहुत ही शांति से मैं सुन लिया। अगर मैंने कुछ आपको गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहा तो I'm sorry. Please go to the website and आपको यही सभी जो भी इंफॉर्मेशन है वो गूगल से मिल सकती है। Thank you very much. Thanks for your time. या अनम्यूट करिए मैडम। Thank you so much, sir, for your great session. And just a moment, I just switched off. Can you hear me, sir? या Yes. So स्टूडेंट्स जो हमारे MBA के होते हैं वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली नहीं होते हैं इस वर्ड से अप्रेंटिसशिप। तो अभी मे बी मेरे काफी बच्चों का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, बट फिर भी कुछ क्वेरीज मेरे पास पर्सनल चैट बॉक्स में आई थी मेरे मोबाइल में कि मैम व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटर्नशिप एंड अप्रेंटिसशिप। लाइक इंटर्नशिप में हम कहीं जाते हैं और वहाँ पे ट्रेनिंग लेते हैं, अप्रेंटिसशिप में भी क्या सेम रहता है? ऐसा क्वेरीज मेरे पास आई थी, तो कैन यू प्लीज आंसर दीज क्वेरीज सर? देखिए अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप जो है, मैंने चाहे तो मैं वापस वो अच्छी तरीके से समझने के लिए वो टेबल आपके सामने रखता हूँ। स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं इन बिटवीन, जब तक सर हमको डिफरेंस बता रहे मैंने हैं। वो हाईलाइट किया है। स्टाइपेंड जो है इंटर्नशिप में आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम लर्निंग कर रहे हैं तो स्टाइपेंड का चलो हम छोड़ देते, मिले ना मिले, वी आर डूइंग दिस फॉर लर्निंग एंड फॉर सर्टिफिकेट। अगर हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो इंटर्नशिप का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। इंटर्नशिप इज डिसाइडेड बाय आइदर इंस्टीट्यूट कि भाई उसको 1 साल का करना है, 3 साल का करना है, या डिफाइंड बाय द इंडस्ट्री। लेकिन उसमें कुछ खास फ्रेमवर्क या डेफिनेशन नहीं है। अगर हम अप्रेंटिसशिप की बात करते हैं तो जो भी प्रोफाइल है, चाहे वो HR एग्जीक्यूटिव हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, स्टोर का हो या लॉजिस्टिक का, ये सबका सिलेबस फ्रेम है। Syllabus is framed by, let me tell you, by the Sector Skill Council. What is the Sector Skill Council? Sector Skill Council is industry-led body registered with NSDC, National Skill Development Council. तो उन्होंने जॉब रोल के साथ वो सिलेबस फ्रेम किया होता है। जॉब रोल मतलब क्या, NSQF अलाइन मतलब क्या? से फॉर एग्जांपल लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ HR एग्जीक्यूटिव या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव इनिशियल लेवल पे। तो उस बंदे को आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन और MBA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के प्रोफाइल को ट्रेन होने के लिए कितना समय लगेगा? दैट वुड बी द ट्रेनिंग ड्यूरेशन अंडर अप्रेंटिसशिप एंड इट इज अ क्लियरली डिफाइंड and validated by the recognized body. Point number 1. Secondly, वहां पे बच्चों ने ड्यूरिंग द ट्रेनिंग क्या क्या सीखना चाहिए, क्या क्या जॉब रोल्स में उसको वर्टिकल से वो सीखने चाहिए या
मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से क्या क्या एक्सपेक्टेशन, उसका पूरा सिलेबस जो है वो फ्रेम किया होता है। सेकेंडली, उसका रिकॉग्नाइज बॉडी से असेसमेंट होता है, प्रैक्टिकल असेसमेंट एंड थ्योरेटिकल असेसमेंट, और वो असेसमेंट होने के बाद आपको रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट मिलता है। दिस थिंग आर नॉट हैपनिंग इन इंटर्नशिप। थैंक यू। ओके एंड सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि व्हेन वी कैन स्टार्ट अप्रेंटिसशिप। नीरज कुमार जामरे एबीएम स्टूडेंट है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। सर हमारे पास एमबीए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट रन होता है, तो उस स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि व्हेन वी कैन स्टार्ट अप्रेंटिसशिप। Immediately, anytime after your graduation, after your post graduation, immediately you can start the apprenticeship. मतलब सर उसमें अगर ऐसा किसी स्टूडेंट का एमबीए कंप्लीट हो चुका है, 1 ईयर या 2 ईयर हो चुका है, वो क्या अभी भी आकर के अप्रेंटिसशिप कर apprenticeship कर सकता है? सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल ओके कर सकता है। ये लर्निंग प्रोग्राम है। देखिए इसमें आप समझ लीजिए लॉजिक क्या है। मैंने समझो ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट इन इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन इन बीबीए और बीएससी। मैं 2-3 साल कहीं पे जॉब करता हूँ, लेटर एंड मुझे लगता है कि आई शुड गो फॉर एमबीए, आई शुड गो फॉर एमएससी, तो मैं क्या नहीं कर सकता हूँ क्या? 100% कर सकता हूँ। उसी प्रकार से ओके सर, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मिनिमम टाइम पीरियड फॉर अप्रेंटिसशिप? ये मिस्टर तरुण पटेल है, एमबीए ड्यूल स्पेशलाइजेशन से, इनका क्वेश्चन है सर। नहीं, इसका हर एक सिलेबस मैंने अभी जब एग्जांपल दिया है इंटर्नशिप का, तब मैंने बताया कि हर एक जॉब रोल के लिए अलग अलग ट्रेनिंग ड्यूरेशन है और वो फ्रेम किया है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किया है। मैं अभी नहीं बोल सकता कि किसी का क्या है वगैरह। आप गूगल करिए, अलग अलग जॉब रोल प्रोफाइल है विथ रिस्पेक्ट टू योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, विथ रिस्पेक्ट टू योर इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि आपने आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रिलेटेड प्रोग्राम में ही अप्रेंटिसशिप करना चाहिए, नॉट नेसेसरी। आपने बीए किया है, आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। आप एमबीए एचआर किया है, आप फाइनेंस में जा सकते हैं। आप आपका प्रोफाइल या करियर आप बदल सकते हैं, तो उसमें आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। और उसका जो प्रोग्राम का ड्यूरेशन है वो हर एक जॉब रोल का, हर एक प्रोफाइल का अलग अलग है। सर स्टूडेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम किस तरह से युवा शक्ति फाउंडेशन की सहायता से अप्रेंटिसशिप कंपनीज में ज्वाइन कर सकते हैं, और क्या इसका कोई चार्जेस रहता है युवा शक्ति फाउंडेशन में? बिल्कुल नहीं, वी आर नॉट टेकिंग एनी चार्जेस टू deploy any candidate across India for apprenticeship. You can go to our website ysfskills.com, वहाँ पे लॉगिन डिटेल दिया है, अपॉर्चुनिटीज दिया है। यू कैन आपका जो भी बेसिक डिटेल है वो फिलअप कर लीजिए। आपको रिस्पेक्टिव एरिया से, जिस भी एरिया से आप है, वहाँ पे हमने एक सवाल डाला है, वेयर यू वांट टू डू द अप्रेंटिसशिप। दो यू आर फ्रॉम से पीतमपुर, भोपाल, और आप किसी को पुणे में आना है, मुंबई में आना है, या नोएडा में जाना है, या चेन्नई में जाना है, उस एरिया का जो आपका इंटरेस्ट है, उसी प्रकार से उस एरिया से आपको कॉलिंग आएगी और आपको सभी प्रकार का लॉजिंग, बोर्डिंग या मोबिलाइजेशन सपोर्ट असिस्टेंट जो है वो युवा शक्ति फाउंडेशन के माध्यम से दिया जाएगा। जी सर। सर प्रेक्षा झासीकर हमारी एमबीए ड्यूल स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट हैं, इनका क्वेश्चन है, कैन वी स्टार्ट ड्यूरिंग एमबीए? Yes, if your institute is allowed to attend the on-job training regularly और आपके क्लासेस करने की जरूरत नहीं, तो कर सकते हैं आप। ये देखिए आपको अप्रेंटिसशिप मतलब इट इज एज गुड एज अ पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट वगैरह, उसके जैसा ही है। दो यू आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय, बट यू हैव टू अटेंड द ड्यूटीज और ऑन जॉब ट्रेनिंग एज अ रेगुलर एम्प्लॉय ओनली। तो आपको इंस्टीट्यूट में क्लासेस में आने के लिए ये नहीं होगा। other industry will not allow you to, I mean, bunk this thing OGT hours। तो ये आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको किस प्रकार से परमिशन मिल रही है। जी सर। सर स्टूडेंट है साक्षी दासोंधी, इनका क्वेश्चन है, फाइनेंस प्लस आईटी, हमारे पास डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस रन होते हैं, तो फाइनेंस प्लस आईटी स्टूडेंट्स कैन आल्सो अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप? ये बिल्कुल कर सकते हैं। आप ई गवर्स में कीजिए, या आप इधर आईटी डोमेन में जाना चाहते हैं या फिनेंस डोमेन में जाना चाहते हैं, या मिक्स जो प्रोफाइल रहता है ई गवर्नेंस या अलग अलग प्रकार के, तो आप उस प्रोफाइल के लिए जा सकते हैं। सेकेंडली, जो भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है मार्केट में अवेलेबल, वो सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी आप पैरेलली कीजिए, ताकि आप इंडस्ट्रीज का जो एक्सपेक्टेशन है, आपका क्वालिफिकेशन है, और जो कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस है उसका अच्छा आप एक
यूज करके इंडस्ट्री में एप्लीकेशन कर सकते हैं एंड यू कैन गो फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर। थैंक यू सर। एंड नीरज चौहान पूछना चाहते हैं सर, एग्रीकल्चर फील्ड में वो किस किस सेक्टर से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं? एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, इस तरह से किस फील्ड में वो जा सकते हैं सर बिल्कुल, बहुत सारी अप्रेंटिसशिप के? कंपनियां है जो एग्री बिजनेस करती है या ग्रुप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं। हमारे मतलब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, मेरे पास एक नाम है समृद्धि करके एक ग्रुप है, वहां पे दैट इज द एसोसिएशन ऑफ फार्मर्स, वे आर डूइंग जॉइंट फार्मिंग, और वहां पे वो जो भी क्रॉप लेते हैं लाइक से आई मीन टोमेटोज एंड ऑल दैट थिंग्स, और वो एक सॉस बनाने वाली कंपनी या केचप बनाने वाली कंपनी है, उसको जो रॉ मटेरियल है वो करती है, और उस सभी चीजों के लिए एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या मार्केटिंग टूल्स है या जो भी एग्री इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, या मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट गवर्नमेंट के जो अलग अलग पॉलिसीज आती है, जो फार्मर्स के लिए स्कीम आती है उसकी to do the say even the crop loan and all that things, the banks are required the graduate from the agriculture background, तो ये बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सर ग्रेट ग्रेट इनपुट सर। हमारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स काफी एक्टिव हो रहे हैं और उनके काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, लाइक फील्ड अप्रेंटिसशिप जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं क्या? सेकंड क्वेश्चन है, अप्रेंटिसशिप जो फील्ड्स में होती हैं वो कंपनी से डायरेक्ट एसोसिएटेड होती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, कोई भी अप्रेंटिसशिप हो आपको रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप पोर्टल में जैसे आप अपना डिटेल्स एंटर करके रजिस्टर्ड करते हैं, उससे फॉर एग्जांपल आपका फोटोग्राफ, आपके एजुकेशनल डिटेल्स, आपका आधार कार्ड, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड योर बैंकिंग डिटेल एज वेल, लाइकवाइज बिकॉज इट इज एक्ट, दिस इज नॉट समथिंग कुछ ऐसा ही एम्प्लॉयमेंट का प्लेसमेंट पोर्टल, इट इज नॉट लाइक दैट। तो इंडस्ट्री को कुछ मैंडेट है रजिस्टर्ड करने का, तो उस प्रकार से जो भी मैंडेट है या एक्ट की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही अप्रेंटिसशिप एग्जीक्यूट होती है। As an apprentice you have a certain duties and expectation from industry, वैसे इंडस्ट्री की भी कुछ ड्यूटीज होती है, to pay you the stipend as per the prescribed rate of stipend and all that things, या आपका असेसमेंट सर्टिफिकेशन, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी, तो आप रिकॉग्नाइज इंडस्ट्री में ही इस प्रकार के आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जी सर, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, वो हालांकि मैं भी आंसर कर सकती हूँ, क्या हम जॉब के साथ अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं? तो अप्रेंटिसशिप तो ट्रेनिंग होता है, इंटर्नशिप होता है जो जॉब के पहले किया जाता है, बट आई थिंक बच्चा ये पूछना चाह रहा है क्योंकि हमारे बच्चे पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं फॉर अर्निंग देयर पॉकेट मनी, तो उसके साथ वो अप्रेंटिसशिप अप्लाई कर सकते हैं क्या? मैंने कहा ना कि भाई ये फुल टाइम पार्ट है, लाइक रेगुलर एम्प्लॉय यू हैव टू डू ऑल द एक्टिविटीज, मतलब वहां पे शिफ्ट ड्यूटीज है तो आपको शिफ्ट ड्यूटीज करनी पड़ेगी, फर्स्ट सेकेंड नाइट, या जो भी कंपनी की पॉलिसी के साथ लीव्स है या हॉलीडेज है, किसी का मंडे है, किसी का संडे है, किसी का वेडनेसडे, तो उसके अनुसार ही आपको जाना पड़ता है। इट इज समझ लीजिए एक प्रैक्टिस सेशन है क्रिकेट मैच के पहले का, तो वो भी आपको सिंसियरली करना पड़ेगा। सर एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू कोविड, कोविड सिनेरियो चल रहा है और कोविड का क्वेश्चन ना आए, कावेरी पूछना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी कोविड है तो अप्रेंटिसशिप ऑफलाइन मिलेगी, इससे काफी जो असर है हमारी जॉब पे वो प्रॉपर होगा? मतलब मैं क्वेश्चन प्रॉपर एक बार इनका समझ लेती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा इनका क्वेश्चन बताती हूँ। ये पूछना चाह रहे हैं ऑफलाइन मिलेगी या ऑनलाइन मिलेगी? ये देखिए कुछ एक्टिविटीज ऐसी है जो घर बैठे नहीं हो सकती है, हमें इकोनॉमी चलानी है, एक्टिविटीज करनी है, तो उसमें या इंडस्ट्री चलानी है तो आपको ऑफलाइन मोड में ही कुछ चीजें कर सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि सभी चीजें हमारे फेवर से नहीं मिल सकती। दूसरा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ वर्स्ट सिचुएशन होते हैं, जहाँ जहाँ क्राइसिस होते हैं या कोई एक हादसा होता है, वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, या हम फेल्योर की बात करें, जब जब फेल्योर होता है तो फेल्योर में भी अपॉर्चुनिटीज होती है। वैसे कोविड का समय में भी अगर हम खुद को जो भी कोविड के नॉर्म्स है, रेगुलेशन है, उसको फॉलो करके, जो भी प्रिकॉशंस है उसको फॉलो करके अगर इंडस्ट्री में हम जाते हैं, खुद को करते हैं, तो उस प्रकार से हमें फ्यूचर के लिए और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में मिलेंगी। हम बोलेंगे कि अरे मैं घर में रहते ही करूंगा तो वो नहीं मिलेगी, मतलब इस प्रकार की चीजें।
चीजों की। जी। आफ्टर ऑल इट इज योर कॉल, योर डिसीजंस, योर पेरेंट्स डिसीजंस। लेकिन इंडस्ट्री चालू है तो इंडस्ट्री में इस प्रकार की एक्टिविटीज भी ओपन है और उसके लिए हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज यादव का। ये पूछ रहे हैं, इफ आई एम ज्वाइनिंग अप्रेंटिसशिप थ्रू YSF एंड आई विल परफॉर्म वेल, then what is the probability to getting job in the same company or any other company? देखिए, our role is only the facilitator to the bridge the gap between industry and the probable clients, I mean the students or educational institute। तो बच्चों को असिस्ट करना है, उनका अवेयरनेस करना है, रजिस्ट्रेशन करना है और इंडस्ट्री को जो भी फैसिलिटेट करना है बच्चों को मोबिलाइजेशन और कुछ कुछ चीजें, वो हमारा एज अ रजिस्टर्ड थर्ड पार्टी एग्रीगेटर विथ MSD, that is our role, or registered with either NSDC or DGT. We are neither involved into your regular OGT practices or your further placement of it. That is entirely call of yours, your performance, your attitude, approach, and the decision of respective industry only. It is neither obligatory on your part to take the offer of industry, or neither it is obligation or mandatory for industry to offer you the placement after completion of training period. This is as per act. Please try to understand. जी सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अप्रेंटिसशिप में इंग्लिश आना कंपलसरी है क्या? बिल्कुल नहीं, आप लोकल लैंग्वेज में कर सकते। ये देखिए, लैंग्वेज इज जस्ट मीडिया, एक माध्यम है टू एक्सप्रेस योर थॉट और दिस थिंग। आपको पता रहेगा शायद से कि हम अगर डेवलप कंट्री की बात करते हैं लाइक जापान, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में ही इवन दो कोरिया कम्युनिकेशन होता है, उनका पूरा लर्निंग होता है। और मेरा खुद का ऐसा मानना है कि मातृभाषा में जितना आप सब्जेक्ट को अच्छा समझ सकते हैं, कर सकते हो, उतना कई भाषाओं में नहीं। आपको बेसिक कम्युनिकेशन के लिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए या डिस्कशंस के लिए उतना सफिशिएंट इंग्लिश आपको आना चाहिए। देन यू कैन डू और योर रेगुलर कम्युनिकेशन इन योर लोकल लैंग्वेज ओनली। इसलिए मैंने आज भी जब सेमिनार लिया तो मैडम को पूछा कि इंग्लिश में देना है या हिंदी में देना है। आई प्रेफर्ड इन लोकल लैंग्वेज ओनली। आपको समझना जरूरी है। मेरा इंग्लिश बोलना और मुझे इंग्लिश आना ज्यादा जरूरी नहीं है। आपको वो सब्जेक्ट समझना, आपको उसका महत्व समझना और उसका अपॉर्चुनिटी लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन स्पीकिंग इन इंग्लिश। आप कितना भी फ्लुएंट बात कर ले, बट यू डोंट नो द एप्लीकेशन, यू डोंट नो द टेक्निक्स, यू डोंट हैव द स्किल्स to present or don't have the background knowledge how to handle the particular situation, वो इंग्लिश बोलने का क्या फायदा? वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। आनी चाहिए, आनी next- चाहिए, लेकिन this is not a obstacle in your better opportunity. Let me tell you very well. मोस्टली लैंग्वेज बैरियर माइंड में होता है, मतलब इंग्लिश हो, हिंदी हो या कोई भी लैंग्वेज हो, अगर कोशिश करें तो हम उतना तो सीख सकते हैं कि एक प्रॉपर कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकें विद द कंपनी एंड विद द अदर स्टेक होल्डर्स। And next question, some more questions sir. Next question is from Bharti Kushwaha। ये जानना चाहते हैं कि अगर उनके पास 10 months to 1 year का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है तो भी वो अप्रेंटिसशिप ट्राई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जी। एंड पवन जाधव ने पूछा है अप्रेंटिसशिप कितने टाइम पीरियड का होता है? तो जैसा सर ने हमको पहले ही बता दिया है, ये डिपेंड करता है। एंड मिनिमम कितने मंथ्स का होता है सर अप्रेंटिसशिप? Minimum 6 months to maximum 36 months. This is the duration framed by the apprenticeship authorities. तो हर एक जॉब रोल के साथ साथ वो अलग अलग होता है। जी सर, वी हैव अ प्रीमियम कोर्स इन सेज यूनिवर्सिटी, MBA विद बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस से शिवानी मिश्रा का क्वेश्चन है सर, इस सेक्टर के लिए भी अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटीज होती हैं क्या बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के लिए? बिल्कुल होती है। इनफैक्ट अभी के सिनेरियो में बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात करता हूँ तो बहुत सारे, मतलब एवरी अल्टरनेट पर्सन, आई मीन हमारे अगर नजदीक की बात करते हैं तो वो सफर हुआ है कोविड से। तो बहुत सारे लोगों ने जो भी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट की है, दे रिक्वायर्ड मेडिकल इंश्योरेंस एंड the help assistant from the insurance agencies। तो वहाँ पे काफी सारी चीजें और ई गवर्नेंस और ई मार्केटिंग की चीजों की अपॉर्चुनिटीज आएगी और आने वाली है और अभी भी है।
सर अंकुर सोनी सेम क्वेश्चन से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फाइनेंस या मार्केटिंग, किस फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर अप्रेंटिसशिप? जो भी है, देखिए करियर के बाद में बोलता हूँ मैं, मतलब हमारा करियर करने का या डेफिनेशन क्या रहता है, या देखने का नजरिया क्या होता है कि पेरेंट्स को क्या लगता है, किस फील्ड को डिमांड है और कहाँ पे पैसा मिलने वाला है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ करियर। ये बहुत ही गलत है। खुद को क्या आता है, खुद को क्या पसंद है और आपके क्या ड्रीम है, दैट इज द करियर। क्योंकि आप खाली डिमांड के साथ जाओगे, पैसे के साथ जाओगे, कुछ समय के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। यू कैन नॉट अप्लाई योर नॉलेज। अगर आपका पसंदीदा फील्ड नहीं है और आप खाली पैसे के लिए कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज्यादा मतलब जो अपॉर्चुनिटीज है या ज्यादा एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज नॉट आई मीन व्हाट यू वांट और व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, या आपका जो भी है मतलब पसंद आता है, तो उसमें आप कहीं ना कहीं बीच राह में आफ्टर 20 इयर्स 30 इयर्स फंस जाओगे। जो आपका सपना है, जहाँ पे आपने ड्रीम किया है, आपने जहाँ पे एडमिशन लेते समय जिस यूनिवर्सिटी में आपको अच्छा आता है, जिसका आपको नॉलेज है, उसी फील्ड में जाना चाहिए। ये इस प्रकार से पूछ के जाना, मतलब ये चीज टेम्पररी होती है। मेरे नॉलेज से आपका उसमें अलग सा ओपिनियन हो सकता है। जी सर, एक हमारे स्टूडेंट हैं, एमबीए पास आउट हैं, बहुत एक्टिव स्टूडेंट्स में से एक रहे, नानालाल अटोलिया। इनका क्वेश्चन है, कैन आई डू अप्रेंटिसशिप इन स्टॉक मार्केट एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट? बिल्कुल, उस प्रकार की जो एजेंसीज है जो ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग और उस प्रकार के असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं, देयर आर मेनी वेबसाइट्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो उस प्रकार की कंपनीज में आप जैसे किसी ने पूछा था, वहां पे तो ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज इट इज टोटली पोर्टल ओरिएंटेड जॉब, आप कर सकते हो। जी सर, अगर किसी के पास 3-4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो तो क्या वो अप्रेंटिसशिप ज्वाइन कर सकता है? तो मैंने बताया कि आप मिनिमम टू आफ्टर योर ग्रेजुएशन और पीजी आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तभी भी आपको लगता है कि नहीं, मुझे इस फील्ड में नहीं, इस फील्ड में जाना चाहिए, ये फील्ड मेरा पसंदीदा नहीं, इस फील्ड में मेरे को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ पे ही मुझे करियर करने की इच्छा होती है, तो आप उस जॉब को छोड़ के अप्रेंटिसशिप के माध्यम से वो जॉब प्रोफाइल का जो भी काम है वो सीख के आप आगे करियर में जा सकते हैं। जी सर, प्रतीक पूरे पूछना चाहते हैं, एग्जाम टाइम में अप्रेंटिसशिप से लीव मिलती है क्या? एंड सेकंड, सम्यक जैन हमारे स्टूडेंट हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हाउ डू आई पास एन अप्रेंटिसशिप इंटरव्यू? इंटरव्यूज होते हैं अप्रेंटिसशिप में क्या सर? होते, वो ज्यादा हार्ड नहीं होते। इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, आपका एटीट्यूड और अप्रोच, बिकॉज एज अ अप्रेंटिस मतलब यू आर लर्नर, यू आर स्टूडेंट, यू आर नॉट एम्प्लॉय। सो आपका अप्रोच, एटीट्यूड और आपकी एबिलिटी, आपका इंटरेस्ट, आपका ऑब्जेक्टिव्स, यही जो 4-5 बेसिक चीजें हैं, वही अलग अलग माध्यम से, अलग अलग क्वेश्चनरी से आपको टेस्ट की जाती है। और आपका सही तरीके से अप्रोच, एटीट्यूड, ऑब्जेक्टिव्स, तो आपको इंटरव्यू में 100% आप पास होगी, किसी को बताने की जरूरत नहीं। सेकेंडली, मैंने बार बार कह रहा हूँ, इट इज लाइक अ रेगुलर, not employee, you are student, you are learner, but you are practicing in the industry, so you have to follow the certain guideline and policies of industries. लीव समय में आपको छुट्टी मिलेगी क्या, दैट इज अ कॉल ऑफ दैट रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। आप जब इंडस्ट्री में अप्रेंटिसशिप करने के लिए जा रहे हो, तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि इस समय में मैं शायद से छुट्टी ले सकता हूँ एग्जाम के लिए। अगर इंडस्ट्री हाँ बोलती है, तभी आप ज्वाइन करिएगा। मेरे ख्याल से इंडस्ट्री इसका परमिशन नहीं देगी। जी सर, लास्ट ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू फाइनेंस की अप्रेंटिसशिप में जो स्टाइपेंड मिलता है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम क्या हो सकता है? एक मोटा आइडिया, रफ आइडिया मिल जाता तो बच्चों It को is थोड़ा सा minimum easy। 5,500 to maximum 9,000 या 10,000 as per the notification। लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो स्टेट मिनिमम वेजेस जो रहते हैं उसको ही फॉलो करके देती है। और मैंने आपको वही चीज दोबारा कहना चाहता हूँ, डोंट join the apprenticeship for earning or for the stipend. Please do join the apprenticeship as a learner, for learning,
the workplace practices one. जी एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट भरथरी खानदे का है, बहुत एक्टिव स्टूडेंट है, क्लास में भी काफी एक्टिव रहते हैं सर। एंड ये पूछना चाहते हैं सर, अभी जैसे कोविड रन कर रहे हैं तो अप्रेंटिसशिप अभी ज्वाइन कर सकते हैं क्या अपने लोकल एरिया में, जिससे इंटर्नशिप भी हो जाए और हमारा जो है नॉलेज एनहांसमेंट भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। आप प्रोग्राम होने के बाद इमीडिएट गूगल करिए, आपके डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कीजिए और 2-3 दिन पूरा आप कहाँ अपॉर्चुनिटीज है वो सर्च करने में लगाइए। डेफिनेटली यू विल गेट अ चांस टू डू द अप्रेंटिसशिप। जी, तो थैंक्स अ लॉट सर, आपने हमारे बच्चे की इतनी सारी क्वेरीज को आंसर किया। एंड नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट शोभना गीते मैम फॉर थैंक यू नोट। शोभना मैम। Thank you very much, Aarti ma'am. On behalf of Tej University, I would like to thank the respected sir that he had spared his valuable time with our students. और जो बेसिक आपने बताए हैं हमारे बच्चों को प्लेसमेंट से रिलेटेड या प्रिपरेशन से रिलेटेड, इसके अलावा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप, इनके जो बेसिक डिफरेंसेस, उनके जो कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने बच्चों को इतनी आसान सी भाषा में और इतना समय देके इन सब चीजों को समझाया। क्योंकि बच्चे जब भी हमारे कॉलेजेस में आते हैं तो सबसे बड़ा एक ही ड्रीम लेकर आते हैं कि उन्हें कुछ अच्छा करना है अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। तो जब वो इस जर्नी पर निकलते हैं तो एटलीस्ट हम कॉलेज में अपने बच्चों को इन सब चीजों के लिए तैयार करते हैं, और आप जैसे लोगों का गाइडेंस भी इन सब चीजों के लिए प्रिपेयर करता है। मतलब आप जब युद्ध के लिए निकल रहे हैं तो अस्त्र शस्त्र सब तैयार करके लेके जा रहे हैं, और वही जो चीजें आपने अभी इन्हें समझाई है वो इनको आगे के लिए अपने फाइट में काम आएंगी, जबकि अपने आप के लिए या अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए निकलेंगे। तो मैं सभी बच्चों की तरफ से आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त दिया और हमारे बच्चों की हर चीज समझ के उन्हें बताई कि क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आज के। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर। थैंक यू सो मच सर। एंड लास्ट एक छोटी सी क्वेरी, एक बार आप प्रोसेस अगर डिस्क्राइब कर दे बच्चों को कि हाउ टू अप्लाई फॉर अप्रेंटिसशिप, तो बहुत बिल्कुल favorable बिल्कुल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यू गो थ्रू वेबसाइट apprenticeshipindia.org, वहाँ वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के राइट हैंड साइड में आपको कॉलम मिलेंगे जहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन, बीटीपी रजिस्ट्रेशन। तो क्लिक ऑन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, जो भी फील्ड आपको सामने दिखाई देते हैं उस प्रकार से आप फिलअप करते जाइए। जनरली रिक्वायर्ड फोटो, योर फोटोग्राफ ऑफ योर सिग्नेचर, योर बैंकिंग डिटेल्स, Aadhaar card link, bank account details, your educational details. These are the mainly desired field there. तो आप fill up करिए, आपके मेल आईडी पे ऊपर आपका एक कंफर्मेशन मेल आएगा, उसमें एक्टिवेट होने के बाद आपको एक लॉगिन डिटेल मिलेगा एड अ कैंडिडेट। आपके मेल आईडी के साथ आप जो भी पासवर्ड यूज करते, पासवर्ड मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको याद रखिएगा, फॉरवर्ड पासवर्ड करके आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छी चीज है कि आप याद रखिए। उससे आप अलग अलग इंडस्ट्रीज को जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हो वो अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं। वहां पे काफी सारी फील्ड है, मतलब स्टेट के साथ, इंडस्ट्री के साथ, सेक्टर के साथ, कौन से सेक्टर में जाना है, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, कौन से स्टेट में जाना है, कौन से सिटी में जाना है, ऐसे काफी सारे सर्चिंग के फील्ड है। उस फील्ड के साथ आप सर्च कर सकते हैं और अलग अलग इंडस्ट्री को आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इंडस्ट्री आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है। एक्सेप्ट करने के बाद यू मे गेट अ कॉल फ्रॉम एचआर डिपार्टमेंट, और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करके कॉन्ट्रैक्ट लेटर साइन होता है एंड दे विल इन्फॉर्म यू अबाउट योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के साथ साथ जो भी इंडस्ट्री की जो पॉलिसीज है रिगार्डिंग लीव्स, वर्किंग आवर्स, उनका सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन, वो आपको समझ के लेना बहुत जरूरी होता है। while I mean getting into actual apprenticeship practice और on job training, वो समझ लेने के बाद आपका जो भी आपका रिस्पेक्टिव सुपरवाइजर है आपको ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट अलॉट करता है आपके जॉब प्रोफाइल के साथ, वहां पे आपको लर्निंग शुरू हो जाती है। So thank you so much sir, thanks a lot. And on behalf of entire Sage family, I Professor Aarti Sharma again thank you, and Milind sir too. एंड आई होप इसी तरह से आप हमारे बच्चों को अपना गाइडेंस देते रहेंगे। बिल्कुल, आने वाले समय में हम चाहेंगे कि देखिए ये एक मीडिया है या
एक बीच का रास्ता हमने निकाल लिया कि वेबिनार के माध्यम से हम कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब भी चांस मिले, आई वुड लाइक टू मीट ऑल योर स्टूडेंट फेस टू फेस में। हम जब जितना इंटरेक्ट करते हैं उतना ज्यादा अच्छा रहता है, और भी टॉपिक्स के हम मैं आने वाले समय में आपके बच्चों के साथ बात करने के लिए बिल्कुल सर। मतलब इंटरेस्ट रखेंगे। थैंक यू वेरी मच मैडम एंड टेक केयर। थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर। थैंक यू, बाय। Thank you, madam. थैंक यू सर।